تو وزیر اعظم کو استعفا دینا چاہیے. لانگ مارچ تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ پی ڈی ایم کا کارڈ ہے, وہ اپنا کارڈ اپنے مرضی کے مطابق کھیلیں گے, لیکن یہ کارڈ ہم ضرور کھیلیں گے اور ہم عوام کی طاقت کے ساتھ اسلام آباد پہنچ کے اس سے استعفا چھین کے رہیں گے. پی ڈی ایم اب کوئی ڈائلاگ نہیں چل رہا حکومت کے ساتھ. ہم نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ ڈائلاگ کا وقت چلا گیا ہے. اب ڈائلاگ تب ہوگا, اب بات تب ہوگا جب یہ وزیر اعظم چلے, جب پاکستان کے عوام اسلام آباد میں اس زور کے ساتھ پہنچیں گے تو یہ وزیر اعظم نہیں بچ سکے گا. 20 ایک لوگ ہیں جن کو لائف تھریٹ, سیریس لائف تھریٹ جو ہیں اس میں 20 لوگ ہیں. سیاستدان, میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں, جس میں 4-5 سیاستدان 2-3 اپوزیشن کے ہیں اور ان پر پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں, اور جس میں خاص طور پر مولانا فضل الرحمان شامل ہیں اور جن کو ہائی الرٹ کے بارے میں انفارم کیا گیا ہے. پی ڈی ایم کا تحریک چل رہی ہے, جلسے ہو چکے ہیں, ابھی احتجاجی 1 مہینہ ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ لانگ مارچ ہوگا اور وہیں سے پاکستان کی کو ریلیف ملے گی, عوام کی تکالیف انشاءاللہ دور ہونے کی ابتدا ہوگی اور ملک میں ایک نئی سیاسی تاریخ انشاءاللہ رقم ہوگی. یہ حکومت مذہب کے نام پہ آگے کھلواڑ بھی نہیں کرنے دے گی. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جوتے کی نوک پہ دھمکا کر, گنڈا گردی کر کے, بدماشی کر کے آپ گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کریں گے؟ آؤ مولانا صاحب, کل کی بجائے آج استعفے دو, کل کے بجائے آج اسلام آباد ہو, دیکھتے ہیں کہ آج اسلام آباد میں تم نے پہلے کیا کیا. تم سمجھتے ہو کہ ہم ڈیزل کے پرمٹ دے دیں گے؟ تب کچھ نہیں ہونے والا. جو کرنا ہے ٹل کا زور لگانا ہے لگا لو, لیکن ہم تمہیں وارننگ دے رہے ہیں کہ ہم اس کی سیاست کو زمین بوس گاڑ دیں گے اور ہم اس کی سیاست اور اس کی بدماشی کو اپنی جوتے کی نوک پہ سمجھتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ. ناظرین, پی ڈی ایم کی طرف سے نئے جلسوں کا اعلان ہو گیا ہے. 24 دسمبر کو ایک جلسہ ہوگا اور پھر 27 دسمبر کو لاڑکانہ میں دوسرے جلسے ہوں گے. اور پی ڈی ایم نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان 31 جنوری تک استعفا نہیں دیتے تو وہ اپنا اگلا لائے عمل طے کریں گے. اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا اور ابھی تک یہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا پی ڈی ایم جو ہے استعفے دے گی کہ نہیں دے گی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ سی ای سی ہی اس کا فیصلہ کرے گی کہ حتمی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی استعفا دے گی کہ نہیں. اس کے اوپر جے یو آئی فے کے اندر جو دراڑیں ہیں وہ کھل کے سامنے آئی ہیں. حافظ حسین احمد نے اپنا موقف بیان کیا ہے اور دیگر جو لیڈر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر استعفے دینے ہیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک واضح موقف اپنانا پڑے گا. 2 بڑی اہم خبریں بھی ہیں آج کی ناظرین. ایک یہ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ چکے ہیں اور یہ اعلان کر چکے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا چکے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے ایک فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے, سرجیکل سٹرائک کی تیاری کی جا رہی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو کشیدگی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مزید بڑھے گی. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اہم اعلان کیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات 10 فروری سے پہلے نہیں ہو سکتے, اس کے بعد ہی ہوں گے قائد و ضوابط کے مطابق. اور اگر یہ الیکشن جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں اس طریقے سے ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت بڑی مضبوط ہو جائے گی, نیشنل اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی, اور جو بھی بل چاہے وہ پاس کر سکے گی. ناظرین, یہ تمام صورتحال جو ہے اس کے اوپر ہم مزید گفتگو کریں گے مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے پاس پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر میاں جاوید لطیف صاحب موجود ہیں. میاں صاحب, پہلا سوال آپ سے یہ کروں گی کہ جو آج شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی ایسے سیاستدان ہیں, 1-2 اپوزیشن کے اندر بھی ہیں جن کی زندگی کو خطرہ ہے. اب مریم نواز صاحبہ بھی ان خدشات کا اظہار کر چکی ہیں. آپ کی طرف, آپ کی پارٹی کو کچھ بتایا گیا ہے حکومت کی طرف سے جی کہ کن لوگوں کو خطرہ ہے, جان کا خطرہ ہے؟ آپ لوگوں کے اپنے کیا خدشات ہیں؟ منیز جی, مجھے یہ بتائیں آپ کہ یہ جو اندیشے ہوتے ہیں یا دہشت گردی پاکستان کے اندر ہوتی ہے, کوئی پاکستانی تو نہیں کرتا, پاکستان دشمن کو نہیں کرتی ہے. میں نے تو یہی سنا تھا. اور عام طور پر یہ نام دیا جاتا ہے انڈیا کا, اور یقیناً انڈیا پاکستان کے اندر اس طرح کی
कार्रवाइयों में मुलव्वस होता है। आप मुझे ये बताएं कि वो पाकिस्तान के दुश्मनों को टारगेट करेगा जो उनका काम कर रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान के खैरखाओं को टारगेट करेगा? मुझे सवाल ये वज़ीर जो है जी मेरा ख्याल है कि राब्ता नहीं हो पा रहा मियां जावेद लतीफ साहब से, मगर वो बड़ी अहम एक बात कर रहे थे। हम कोशिश करेंगे फिर से उनसे राब्ता हो, मगर जो वो अहम बात ये कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि इस तरह के खदशात जो हैं वो हैं, और अगर आपको याद हो तो पहले भी मरियम नवाज साहिबा जो हैं इन खदशात का इजहार कर चुकी हैं। फिर एक कॉलम लिखा गया था, सुहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा था जहां पे उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी को खतरा होगा, और इस बात का उन्होंने इजहार भी किया था। हम कोशिश करेंगे कि फिर से मियां जावेद लतीफ साहब से हमारा राब्ता हो जाए। जी मियां साहब, आप अब लाइन के ऊपर हैं। आप ये बात कर रहे थे कि जी खदशात कुछ होते हैं मगर मुल्क के अंदर से भी होते हैं, बात पूरी मुकम्मल करिए। नहीं, मैं वही बात कर रहा था कि आप मुझे ये बताएं कि दुश्मन जो है वो इस तरह की कार्रवाइयां दहशतगर्दी की पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए, जानी नुकसान पहुंचाने के लिए, दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी खराब करने के लिए, उसकी मैशत को तबाह करने के, यही टारगेट होता है ना दहशतगर्दी का, दुश्मन वाले का। तो जो काम बकौल हुकूमत वक्त के पाकिस्तान के सियासतदान जिनका वो नाम लेते हैं, मौलाना फजल रहमान, इंडियन नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, ये सारे इंडियन नवाज हैं, तो फिर इनको क्यों खतरा है इंडिया की कार्रवाइयों से या दुश्मन की कार्रवाइयों से? ये तो खतरा होना चाहिए था। फिर मैं तो नहीं कहता कि खुदा ना खास्ता किसी को भी खतरा हो, मगर ये खतरा बकौल हुकूमत वक्त के, तो फिर हम मुल्ज़मतन लोगों को होना चाहिए, इमरान खान को या दीगर लोगों को होना चाहिए। उनको खतरा नहीं है और खतरा इन लोगों का है। ये वही बातें हैं जो पहले से दोहराई जाती रही हैं। कभी ये पाकिस्तान के सियासतदानों को करप्ट कह के नाहल करवा देना, कभी इंडियन नवाज कह के कत्ल कर देना या करवा देना या फांसी चढ़ा देना या हाईजैकर बना के पाकिस्तान बदर कर देना, ये सारी अब चीजें बार बार बिकने वाली नहीं है। मगर अगर ये कुछ होता नहीं, मगर मियां साहब तो आप ये कह रहे हैं कि आपको शायद डराने के लिए ये कहा गया है ताकि आप लोग जलसों जुलूसों के अंदर बाहर ना आए? नहीं, डराने के लिए तो अपनी जगह साबका वजीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह ने क्या कहा था बलोर खानदान के लिए। ये जो आज के वजीर दाखिला हैं क्या कहते थे ननकाना साहब में खड़े होकर खान की मौजूदगी में कि मारो मर जाओ, छोड़ेंगे नहीं, मार दो। ये सारी चीजें करने वाले को अचानक यकायक लगाया क्यों गया है? ये आज भी वही बातें की जा रही हैं। इनके वज़रा कहते हैं जी मॉडल टाउन वाली तारीख नहीं दोहराएंगे, फलां, ये हमसे नहीं क्यों लगाया गया है? सब पता आप बताइए क्यों लगाया गया है? यकीनन ये वो टारगेट पूरे करने के लिए लगाया गया है जो ब्रिगेडियर एजाज शाह कहते थे कि अपोजिशन की छतरौल करेंगे। वो छतरौल तक था, ये मारने तक तुला हुआ है। ये अगर वजीर दाखिला इस जैसा, और मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान नहीं मियां साहब, आपने एक बहुत अहम आपने इल्जाम लगाया है। आपने ये कहा है कि वजीर दाखिला इस वक्त शेख रशीद साहब जो हैं वो मारने पे तुले हुए हैं ऑपोजिशन को। ये आपने बयान दिया, आप यही कह रहे हैं? क्लियर होनी चाहिए बात। मेरी बात सुने मनीजे, मैं बात नहीं कर रहा, मैं उसकी जुबान की बात कर रहा हूँ। उसने क्या इमरान खान की मौजूदगी में ननकाना साहब के जलसा आम में ये बातें नहीं की थी? और अगर नहीं की थी तो मैं माफी चाहता हूँ, और अगर की थी तो फिर इसको वजीर दाखिला लगाया क्यों गया है? ये कमाल है। हमारे खदशात जो हैं वो कोई हवाई नहीं है। हम तो बिल्कुल वो बात कर रहे हैं जो हमारे साथ हो रहा है या ये करने जा रहे हैं। अच्छा, तो जो एक खदशा जाहिर किया गया था मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कि जी मेरी जान को खतरा है, आप उसके बारे में बात करना चाहेंगे? चूंकि वो खदशा जो था वो एक सहाफ़ी के जरिए उनकी बात में, उनके कॉलम में लिखा गया था, उसको PMLN ने डिनाई नहीं किया। क्या आप समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा को जान का खतरा है? मैं इसी वजीर दाखिला जो है मौजूदा, जिन्होंने आज
جی میرا خیال ہے کہ میاں جاوید لطیف سے جو ہے ہماری کال اس وقت نہیں مل رہی، مگر انہوں نے جو اہم بات کی ہے وہ یہ، انہوں نے ایک الزام لگایا ہے کہ وزیر داخلہ پہلے جس قسم کی بات کرتے رہے اپوزیشن کے حوالے سے کہ ہم اپوزیشن کو مار دیں گے، ان کو چھترول لگائیں گے، شاید اسی وجہ سے ان کا یہ الزام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ان کو وزیر داخلہ کا عہدہ دیا ہے۔ ایک سنگین الزام ہے یقیناً، اور اس کے بارے میں ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اہم لیڈر ہیں شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم سے بھی بات کریں گے، وہ بھی ہمارا انتظار کریں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم لیڈر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائیلاگ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے ہمیشہ بات کی ہے کہ جی تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے اور تبھی ملک کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکل سکتا ہے، کوئی نہ کوئی بات ہو سکتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سٹیک ہولڈرز کو ایک ہی ٹیبل پہ بٹھانا، ملک کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنا، اس کا وقت جس طرح یہ کہتے ہیں ختم ہو چکا ہے؟ جی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تو پہلے یہ بات ممکن تھی کہ پارلیمنٹ ایک ڈائیلاگ کی جگہ ہوتی ہے، ہمیشہ اپوزیشن گورنمنٹ کا ڈائیلاگ وہاں پہ رہتا ہے، وہ ختم ہو گیا۔ یہ مجھ سے ٹی وی پروگرامز میں بہت سے لوگوں نے پوچھا، آپ نے بھی پوچھا کئی دفعہ، تو میں نے یہی کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں اگر وہ ملک سے محبت رکھتے ہیں تو بیٹھیں اور مسائل کا حل کریں، ملک تو نہیں چل رہا، ملک مشکل میں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے مگر اس کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، آپ کو لگتا ہے یا کہ ابھی بھی وقت ہے؟ جی نہیں، اب وقت ختم ہو گیا ہے اس حوالے سے کہ اب آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ عوام کو پھر رائے کا موقع دینا ہے۔ یہ پہلا بنیادی فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ ہم ناکام ہو گئے، ہمارا جو ماڈل تھا وہ نہیں چلا، جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اس نے جو حکومت دی وہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے، وہ ملک کے مسائل نہیں حل کر سکی، تو اب ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے۔ وہ آپ فیصلہ کر لیں، اس طرف جائیں، اس کے بیچ میں جو ایشوز ہیں ملک کے وہ تمام لوگ جانتے ہیں، وہ بیٹھ کر ان کو کسی فورم پر اس کا حل کر لیں تاکہ الیکشن کے بعد بھی آپ کا ملک آگے چل سکے۔ ورنہ یہی نظام جو آج ہے، جو وقت کے ساتھ مار کھا چکا ہے، نہیں چل سکا، اگر ہم اسی کو لے کر آگے چلنے کی کوشش کرتے رہے تو پھر ملک نہیں چلے گا۔ تو لیکن پہلا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اعتراف کریں کہ ناکام ہو گئے، معاملہ نہیں چلا۔ اچھا جی، مگر اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن اس وقت جو ڈیمانڈز کر رہی ہیں وہ بالکل ہی غیر جمہوری ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے، اس لیے چونکہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی فوج کو کہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹا دیں۔ نہیں، میرا خیال ہے نہ عمران خان صاحب نے آرٹیکل 6 پڑھا ہے، غداری کے کیس ہم پہ بہت سے بنے ہوئے ہیں، ایک اور بنا دیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا، حقائق اس سے تبدیل نہیں ہوں گے۔ ہم بالکل فوج سے بات نہیں کر رہے۔ اگر آج عمران خان صاحب یہ کہہ دیں کہ فوج کا کوئی حصہ نہیں ہے اس ملک کی سیاست میں، اس ملک کی حکومت میں، تو بس ٹھیک ہے، ان کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ ان کی ناکامی ہے، وہی اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیں کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، جس الیکشن کے نتیجے میں حکومت میں آیا تھا وہ معاملہ بھی ناکام ہو گیا ہے، اب عوام کو پھر رائے کا موقع دے دیں، یہ بات کر لیں۔ لیکن حقائق اس کے بڑے برعکس ہیں، حقائق وہ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، تو حقائق کو سارا دن کوریدنے سے بات نہیں بنے گی۔ اب اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ آج جو نظام تھا، جو ہائیبرڈ سسٹم تھا، اس نے ملک کو مشکل کے علاوہ کچھ نہیں دیا، اس نے عام آدمی کو مہنگائی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، اس نے لوگوں کو بے روزگار کر دیا، معیشت کو تباہ کر دیا۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ آپ اسٹیک ہولڈرز کی جب بات کرتے ہیں تو وہ تو ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی بھی مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے۔ مذاکرات کس سے کریں گے؟
हम तो मुज़ाकरात की बात ही नहीं करते उनसे। अपोजिशन गवर्नमेंट का डायलॉग होता है पार्लियामान में। पार्लियामान को इस हुकूमत ने जानबूझ के मफलूज किया। 2.5 साल में अवाम का एक मसला वहां पर नहीं आ सका। आज आप देख लें, वो मुल्क जो बिजली और गैस में सरप्लस था, आज ना मुल्क में बिजली है ना गैस है। ये बात पार्लियामान में नहीं हो सकती। पार्लियामान तो बंद पड़ी है, वहां कोई इशू नहीं लाया जा सकता। इसलिए अब आपको अवाम के पास फिर जाना होगा, अवाम से बात कर लें। उससे पहले आप ये बात बार बार करते हैं कि आपको अवाम के पास जाना होगा, मगर इमरान खान साहब एक और बात करते हैं। कल ही कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी ही डेंजरस गेम खेल रही है। उन्होंने शाहिद साहब एक और बात भी इमरान खान साहब ने की। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानी फौज जो है, आर्मी चीफ DGISI अगर इमरान खान साहब को नहीं हटाते तो एक तरीके से आप फौज को तंबी दे रहे हैं कि वो उनको हटा दें। ये भी उन्होंने बात की अपने एक इंटरव्यू में। देखिए, वो बहुत से इंटरव्यू करते रहते हैं। मैंने आज तक उनके मुंह से पाकिस्तान की अवाम की तकलीफ के बारे में कुछ नहीं सुना। यहां कोई फौज से झगड़ा नहीं है, आर्मी चीफ से झगड़ा नहीं है, DGISI से झगड़ा नहीं है। बात तो अवाम की है, बात तो मुल्क की है। मुल्क मुश्किल में है, अवाम तकलीफ में है। इसकी बात कभी इमरान खान साहब ने की है? इसका कोई हल निकालने की कोशिश की है? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आप वापस आइन पे नहीं आएंगे, अगर हम आइन को इसी तरह तोड़ते रहेंगे, आइन के एहतराम नहीं करेंगे, अवाम की वोट का एहतराम नहीं करेंगे, तो मुल्क नहीं चलेगा, अवाम और मुश्किल में पड़ेंगे। हम तो ये कह रहे हैं, किसी से झगड़े की बात नहीं है, किसी से गम गुस्से की बात नहीं है, यहाँ कोई गम गुस्से की जरूरत नहीं है। ठीक, हम सब मुल्क वतन उतने ही हैं जितना कोई और है। आपके पास और मुल्क के मसाइल को हल करें। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, ये भी तो बताना लोगों को बहुत जरूरी है। आप लोग कहते हैं कि जी हम इस्तीफे दे देंगे, मगर अभी हाल ही में फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी एक आज ही बल्कि एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान जो मीटिंग हुई, उसके अंदर ये तय पाया कि हम इस्तीफे जो हैं अभी उसकी बात नहीं करेंगे, और हम मरियम नवाज साहिबा की और मौलाना फजल रहमान की बात नहीं सुनेंगे। देखिए, इस्तीफा देना, फयाजुल हसन चौहान की स्टेटमेंट अपनी जगह, मगर इस्तीफा देना क्या इतना आसान होगा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी आसानी से सिंध प्रोविंस की कुर्बानी दे देगी? देखिए, यहाँ तो जितने मुंह इतनी बातें हैं, पता नहीं कौन कौन से साहिबान यहाँ बयानात देते हैं। बात मेरे ऑप्शंस की नहीं है, बात आपके ऑप्शंस की है। आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं? क्या आप मुल्क को दुरुस्त कर सकते हैं? क्या आप मईशत दुरुस्त कर सकते हैं? क्या आप आवाम की तकलीफ दूर कर सकते हैं? क्या आप बिजली ला सकते हैं, गैस ला सकते हैं? आप मईशत को दुरुस्त कर सकते हैं? आप महंगाई को खत्म कर सकते हैं? बात तो उन ऑप्शंस की है। मेरे ऑप्शन से मैं इस्तीफा देके चला जाऊंगा, आप मुल्क चला लेंगे। अगर मुल्क की बेहतरी मेरे इस्तीफे में है तो मैं तो आज इस्तीफा देने को तैयार हूं। मैं तो निजाम का हिस्सा, मैं तो अब ये महसूस करता हूं कि पहले दिन से बनना ही नहीं चाहिए था। हम तो उस वक्त भी जमहूरियत की खातिर उसके तसलसल को बढ़ाने के लिए शामिल हुए, लेकिन वक्त ने साबित किया वो फैसला गलत था कि एक धांधलीशुदा इलेक्शन में हमें उसमें शिरकत नहीं करनी चाहिए थी। तो आज जो सियासत है, तो आप समझते हैं कि वो फैसला गलत था, आपको इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आज इस बात पे पूरा मुझे यकीन है कि वो फैसला हमारा गलत था, क्योंकि जो कुछ इस हुकूमत ने किया है, जिस तरह इसने मुल्क को तबाह किया है, इस मुल्क की सोसाइटी को तबाह किया है, जो अवाम को दिया है, ये इसमें हम भी शरीक हैं। हम इसमें शिरकत नहीं करना चाहते, इस निजाम में हम शरीक नहीं होना चाहते, हम इसकी दुरुस्तगी चाहते हैं। आज बात इक़्तिदार की नहीं है, आज बात मुल्क के निजाम की दुरुस्तगी की है। अगर उसमें किसी को एतराज है तो माफ शाहिद साहब, बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी हम इस्तीफा नहीं देंगे। वो कहते हैं आप जो मर्जी कर लें, आप आए इस्लामाबाद, हम आपको कंटेनर देंगे, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। मैं वाज़े तौर पे बयान देता हूं कि जी ये कभी भी एक हफ्ते से ज्यादा रह नहीं पाएंगे। अगर वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है और मौजूदा हालात के अंदर सेनेट इलेक्शंस हो जाते हैं तो ये हुकूमत तो और भी मजबूत हो जाएगी।
दूसरी तरफ आपने खुद देख लिया कि JUIFA के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, हाफिज हुसैन अहमद साहब की उठ रही है और दीगर लीडरान की उठ रही है, जो कह रहे हैं कि जी पहले भी मौलाना फजलुर रहमान साहब सर्दी में उन्होंने बच्चों को बिठाया, उसके नतीजे में पता नहीं किसके साथ मुआहदा करके वो वापस आ गए। तो इस बार आप क्या समझते हैं, धरनों से जलसों से तो वज़ीर आज़म इस्तीफे नहीं देते हैं? ना देना, हमने तो हल दिया है ना। हमने आज मुल्क की मुश्किलात का हल दिया है कि इस नाकाम ये निज़ाम खत्म हो, अवाम को मौका दें, क्योंकि आपने अवाम की राय को रद्द करके ये निज़ाम मुसल्लत किया, वो निज़ाम नाकाम हो गया है। आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, इस तकलीफ को अवाम की बढ़ाना चाहते हैं, तो रहें, मजे करें। सेनेट इलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेनेट ने कौन सा यहां तीर चला लेने, आप सारी सेनेट ले लें, सारी कौमी असेंबली ले लें, क्या मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? अगर कोई ये समझता है कि वो पूरी सेनेट की सीटें 100% ले ले, कौमी असेंबली की भी ले ले, मुल्क के हालात दुरुस्त हो जाते, मैं सबसे पहले इस्तीफा देने को तैयार हूं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जनाब आप नाकाम हो चुके हैं, अवाम के एतमाद खो चुके हैं। हुकूमतें अवाम के एतमाद से चलती हैं, वो सेनेट की सीटों पे नहीं चलेंगी, वो कौमी असेंबली की सीटों पे नहीं चलेंगी। वो मौका आपको मिल गया, आप नाकाम हो गए काम करने में, इस बात को मान लें। इसके ऊपर आप बहुत बात कर चुके हैं, मगर कुछ नाकामियां, कुछ गलतियां तो शायद आपकी पार्टी की भी हैं। क्या आप समझते हैं, लुकिंग बैक एट थिंग्स, कि जो आर्मी एक्ट के ऊपर आप लोगों ने वोट दिया था और उसके ऊपर बहस भी नहीं होने दी थी पार्लियामेंट के अंदर, वो दुरुस्त फैसला था? देखिए, हमारी भी गलतियां हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती निजाम में शामिल होना थी। मैं उसका इतराफ करता हूं और माजरत चाहता हूं इस मुल्क के लोगों से कि हम जमहूरियत की खातिर निजाम में शामिल हुए। अगर आर्मी एक्ट की एक्सटेंशन गलत काम था तो हम भी उस गलती में शामिल हैं। अगर ये आप कह रहे हैं गलत काम था, बड़ा गलत काम था, फिर हम भी गलती में शामिल हैं, हम भी माजरत चाहते हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बात तो ये है कि ये अगर आप इसको देखें, आर्मी एक्सटेंशन का नहीं है। अगर वो गलती हुई है, वो गलती कल दुरुस्त हो सकती है। इशू तो मुल्क की मईशत का है, इशू तो महंगाई का है, उसका हल क्या है? किसी ने बात की है, कि आज मुल्क में बिजली नहीं है, अच्छा, आज मुल्क में गैस नहीं है, देखिए आज मुल्क में महंगाई है, ये बात की है कभी किसी ने? देखिए शाहिद साहब, बात देखिए जरूर है, महंगाई है भी, इसके ऊपर हम समझते हैं कि वाकई में महंगाई है, फूड इन्फ्लेशन जो है इस वक्त है। मगर ये भी एक सोच पाई जाती है कि जो एक हुकूमत है उसको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अगर आप किसी और की तरफ देखेंगे और उनको कहेंगे कि इनके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि ये रिजाइन कर दें, तो फिर आप उन्हीं कुव्वतों को कह रहे हैं कि आके पॉलिटिक्स के इंटरवीन करें जिनके खिलाफ आपने नारा लगाया है, जिनको आपने कहा है कि वोट को इज्जत दो। हम किसी को नहीं कहते, हमने ना किसी को कहा है। हम सबसे पहली बात ये करते हैं कि ये मुदाखलत जो गैर आईनी मुल्क की सियासत में है, इसको खत्म करें। इसी ने ये सारी खराबी दी है। हम तो मुल्क की खराबी की बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि अगर आपने निजाम को दुरुस्त करना है तो उसकी इब्तदा जो है वो इस गैर आईनी जो तर्ज हुकूमत है इसको खत्म करने में है, वो इलेक्शन को चोरी ना करने में है, वो मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने में मुल्क की बेहतरी है। हम तो ये बात कर रहे हैं। हम किसी तरह तो पहले मरले को देखिए ना, पहले मरले में अगर आप कहते हैं कि जी आप डायलॉग हो, मगर आपने कहा तो था कि अगर स्टेक होल्डर्स मिल के बैठे तो उसके अंदर फौज को भी शामिल होना चाहिए, उसके ऊपर मीडिया के अंदर भी शामिल होना चाहिए, उसके अंदर सियासतदानों को भी शामिल होना चाहिए और बैठ के ये फैसला करना चाहिए कि किस तरीके से इस मुल्क को चलना है, कुछ कायदे बनाने चाहिए। ये आप बात पहले कह चुके हैं। जी, मैं आज भी ये बात कहता हूं कि जो लोग मुल्क की सियासत पे असर आप तो कह रहे हैं इसका वक्त गुजर गया, ये आईनी है। मैं उसका वक्त गुजर गया बदकिस्मती से, उस चीज का एक वक्त था। अब आपको अवाम को फिर राय का मौका देना पड़ेगा और उससे पहले उसी दौरान बैठकर ये फैसले कर लें। अगर मुल्क की आईन में कोई खराबी है, सारे बैठ कर उसको दुरुस्त कर लें, क्योंकि आज जिस तरह मुल्क हम चला रहे हैं, मुल्क तो चल ही नहीं रहा। अवाम मुश्किल से मुश्किल में पड़े जा रहे हैं। कोई महंगाई का हल किस चीज में है? हमने महंगाई का हल आपको दे दिया। इस निजाम में महंगाई का हल नहीं है। अगर हम आपके जब तक आप निजाम को बदलेंगे नहीं, जायजा लें जी,
जी, लोग जानना चाह रहे हैं कि आपका अपना प्लान क्या होगा। ये नाकदीन ये कहते हैं कि इस्तीफा देना इतना आसान नहीं होगा। आप लोगों ने पहले इस्तीफे मांगे थे 31 दिसंबर, आपने वो डेट जो है वो कम कर दिया। आपने कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं उनके हाथ में इस्तीफे होने चाहिए। फिर ये भी एक सवाल उठता है कि अगर आप इस्तीफे दे देंगे और उसके बाद भी कुछ ना हुआ और हालात इस तरह बने रहे तो आपके मुखालफिन तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आपका कोई प्लान भी है? ये तहरीक है, हमारी एक हदफ है। वो हदफ मुल्क के निजाम की तब्दीली है। वो एक दिन में हो, एक इस्तीफे से हो, महीने में हो, साल में हो, 3 सालों में हो, 20 सालों में हो, हम उससे कमिटेड हैं। हम उस तनख्वाह पर नौकरी नहीं करेंगे जिस पर यह हुकूमत कर रही है। वो तो उस तनख्वाह पे पाकिस्तान का गुजारा नहीं होता। ये सारी बात है। तब्दीली जितनी जल्दी आएगी मुल्क के लिए बेहतर होगा। आपने इस निजाम को बदलना है, हम ये कह रहे हैं। इस निजाम के होते हुए मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये बात जब आप समझ जाएंगे तो बाकी इस्तीफे देना ना देना, कब देना, कैसे देना, उस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है। वो मेरे लिए सेकेंडरी बातें हैं, वो सानवी बातें हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। असल जो बात है वो नहीं, मगर ये तय तो करना पड़ेगा ना शाहिद साहब कि आगे कैसे चलना है। तय देखिए, अगर इलेक्शंस होने होंगे तो फिर आपको इलेक्शंस के हालात तो चाहिए होंगे। इस वक्त क्या मुल्क एक और इलेक्शंस बर्दाश्त कर सकेगा? अगर कोई ये समझता है कि इलेक्शन के बगैर मुल्क चला लेगा, वो चला के देख लिया हमने। अगर कोई समझता है कि इलेक्शन को चोरी करके चला लेंगे, वो भी हमने करके देख लिया। एक दफा हम ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के अवाम की बात भी सुन लें कि जो फैसले वो करते हैं उसके मुताबिक हुकूमत बननी चाहिए। शाहिद साहब देखिए, ये बात आप कर चुके हैं, मगर लेट्स गो थ्रू द स्टेप्स ना शाहिद साहब। और इलेक्शंस करवाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। आखिरकार अगर आप इलेक्शंस कराएंगे तो इस वक्त मुल्क की मईशत देखें, इलेक्शंस तो बड़े महंगे होते हैं, पैसे लगते हैं। हमारे मुल्क के अंदर तो खून भी बहता है इलेक्शंस के अंदर। फिर सेंसस के हवाले से अभी तक सेंसस की जो रिपोर्ट है, क्या आखिरी सेंसस था उसकी हतमी रिपोर्ट शाया नहीं हुई, वो भी चैलेंज हो गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो कैसे आएगी, किस तरीके से आएगी, कौन इलेक्शन करवाएगा, आप कैसे गारंटी करेंगे कि फौज इसके अंदर मुदाखलत नहीं करेगी? इसके लिए आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया है या आपने कोई बातचीत शुरू की है जिसके तहत आपको लगता है कि उसके ऊपर बातचीत हो सकती है? मामला तो मसाइल तो ये हैं। देखिए, मसाइल ये भी हैं कि आप इलेक्शन के खर्चे की बात करते हैं। इलेक्शन का टोटल खर्चा 10 दिन के गर्दशी कर्जे से कम है, और ये वो गर्दशी कर्जा है जिसमें इस हुकूमत ने 500% इजाफा कर दिया है। अब आप उस इजाफे को देखते रहेंगे कि वो इजाफा जब 1000% पहुंचेगा तो फिर जाके कदम उठाएंगे। मसाइल सबको पता है। नहीं, मगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के हवाले से आपने कुछ तरमीम भी करनी थी, उसके ऊपर भी बात हुई थी। कौन सी तरमीम चाहिए? तो कर ले तरमीम, बैठ जाए टेबल पर, कर ले तरमीम। आपकी पार्टी ने मांगी है तरमीम होनी चाहिए, इलेक्शन रूल्स के अंदर तरमीम। मैं तो समझता हूं वो आज आपके मुल्क को किसी तरमीम की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बात की जरूरत है, एक तरमीम चाहिए कि सारे हलफ उठाएं जो आइन के तहत हम सब ने उठाया हुआ है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा। इस बात का इरादा कर लें, इस बात को जो हलफ को पूरा कर दें, बात खत्म हो जाएगी। बात पेचीदा नहीं है, बात बड़ी सीधी है। लेकिन जी एक और बात के ऊपर भी हम बात करते हैं कि जी बहुत सारे आपके ऐसे बयानात आए या आपके कुछ लीडरान के बयानात आए, बिलखुसूस मैं जावेद लतीफ साहब की बात करूंगी। वो प्रोग्राम आपसे पहले इधर प्रोग्राम के अंदर शामिल थे और उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 6 से 7 लोग ऐसे हैं जो विकेट के इस पार और उस पार दोनों पार खेल रहे हैं और उनका भी अब एहतसाब होगा। यानी आपकी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के नजरिए से मिलके नहीं चल रहे। आप समझते हैं कि ऐसे लोग हैं और अब क्या उनके लिए क्या रूम रह जाएगा आगे बढ़ते हुए, चूंकि आप लोग तो एक्सट्रीम पोजीशन पे चले गए हैं? मोहतरमा,
مجھے کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ملک آئین کے مطابق نہ چلے. یہاں پر 40 پروگرام دن میں ہوتے ہیں, اس میں ہماری پارٹی کے 40 لوگ شرکت کرتے ہیں. ہر قسم کا سوال وہاں پر کیا جاتا ہے, اس کا جواب دیا جاتا ہے. تو اگر جاوید لطیف صاحب نے کہہ دیا تو انہوں نے ذاتی بات کر دی ہے, وہ پارٹی کے نمائندے نہیں ہیں, ایک MNA ہے, ان کا حق ہے بات کرنے کا, انہوں نے کر دی. میں نے تو زندگی میں کوئی شخص بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہوا نہیں دیکھا. ہمیشہ وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے جو وکٹوں کے درمیان کھیلتا ہے. وکٹ کے پیچھے کھڑا ہوگا جو کھیلنے کی کوشش کرے گا وہ ہمیشہ ناکام ہوگا. یہ باتیں مزہ خیز سی باتیں ہیں, ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کا بہرحال شوق ہے, انہوں نے کر دیا, شوق پورا ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ آج ہر پاکستانی جو PDM کا بیانیہ ہے اس سے اتفاق میں ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے. ہم اور کچھ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار دے دیں, ہم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی مفاد دے دیں, ہم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں یار ملک آئین کے مطابق چلائیں. نہیں چلتا اس کے بغیر, کوششیں کر لی نہیں, مگر کچھ لوگ ایسے ہیں قطع کلامی معاف شاہد صاحب جو آپ کے بیانیے سے بالکل بھی اگری نہیں کرتے. JUIFA کے کچھ لیڈران ایسے ہیں. حافظ حسین شاہد صاحب, یہ آپ نے بات سن لی. JUIFA کے اہم لیڈر ہیں حافظ حسین احمد صاحب, یہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ میں آپ نے PDM کے فیصلے دے دیے ہیں. اگر فیصلہ ہو گیا کہ استعفے دینے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا ضرورت پڑی کہ CEC کی وہ اجازت لیں؟ محترمہ, میں سیکرٹری جنرل ہوں PDM کا. میں نے ہمیشہ بیان دیا ہے کہ استعفے ایک آپشن ہے, اس کا فیصلہ PDM وقت پہ کرے گی. وہ آپشن موجود ہے. حافظ حسین احمد صاحب نہ کبھی کسی میٹنگ میں آئے ہیں, نہ میں نے ان کو دیکھا ہے. کیا وہ JUIF کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ یہ آپشن ہے, یہ موجود ہے. جب PDM فیصلہ کرے گی ساری جماعتیں استعفیٰ دیں گی. جو نہیں دے گا اس کو عوام دیکھ لیں گے. یہ میں کہہ رہا ہوں نا, یہ کوئی تحریک کسی کے اقتدار یا مفاد کی نہیں ہے. یہ ایک اصول پر ہے, اور اس اصول سے نہ حافظ حسین احمد صاحب انحراف کریں گے, نہ جاوید لطیف صاحب کریں گے, نہ وزیر اعظم صاحب کریں گے, نہ کوئی اور شخص کر سکتا ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلائیں. ہر دوسرے طریقے سے ہم نے چلا لیا اور ناکام ہو گئے. اس بات کو قبول کر لیں. آپ نے اصولوں کی بات کی شاہد صاحب, تو ایک سوال ضرور بنتا ہے.